हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट रोल प्ले। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रोल प्ले। रोल प्ले इज एन इफेक्टिव टेक्निक्स टू एनिमेट द टीचिंग एंड लर्निंग एटमॉस्फेयर, arouse the interests of learners and make the language acquisition impressive. So this research will mainly focus on how to apply it successfully and take the most advantage of it in class language. The outcome shows there are 4 crucial factors for its success. The topic chosen should be real and relevant. The teacher need feed in the appropriate language. Correct errors in a proper way. Some of teachers' role are facilitator, spectator or participant. Incorporating role play into the classroom adds variety, a change of pace and opportunities for a lot of language production and also a lot of fun. Okay, भूमिका रोल प्ले शिक्षण और सीखने के माहौल को चेतन करने, शिक्षार्थियों की रुचि को जगाने और भाषा अधिग्रहण को प्रभावशाली बनाने की एक प्रभावशाली टेक्निक है। तो यह शोध मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जाए और अंग्रेजी कक्षा में इसका सबसे अधिक लाभ उठाया जाए। रिजल्ट से पता चलता है कि इसकी सफलता के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। चुना गया विषय वास्तविक और प्रासंगिक होना चाहिए। शिक्षक को उपयुक्त भाषा में फिट इन की आवश्यकता होती है। सही तरीके से त्रुटियों को ठीक करना। कुछ शिक्षक भूमिका सूत्रधार, दर्शक या प्रतिभागी होते हैं। रोल प्ले को कक्षा में शामिल करने से विविधता, गति में बदलाव और ढेर सारे भाषा निर्माण के अवसर मिलते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। ओके, role play are an essential tool to have in the teaching box, but it pays to be aware of where you want them to go. Here are some questions to ask yourself as you design a role play. What kinds of language structures or grammar points do I want my students to use, and will this role play incorporate them naturally? Do I know in my own mind I want to see occur in the role play? Do the students have the language and social skills to be able to manage the situation? Can I issue set of instructions clearly and make sure that all participants understand their own roles? Is the situation appropriate for the age, level and status of the students in this? What do I want the students to take away from the exercise, and how can I reinforce this through feedback? Lastly, it always helps if students are enjoying themselves. Role play don't have to be deadly serious affairs. But as teachers, we get more out of them if we approach them seriously and tie them in our broader lessons goal. Role play in any classroom brings a range of benefits. It adds variety to a lesson, which can be fun and motivating for students. It broadens the possibilities for language production by taking students beyond their own lives and experiences. Role play can also help with group dynamics. Quiet students can take on the role of a much more forthright person and are encouraged to communicate more readily. It can especially be helpful to students who are learning English in an ELL setting. So how can you best use role playing games when teaching English? Here are some practical tips. किसी भी कक्षा में भूमिका निभाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। ओके, ये एक पाठ में विविधता को जोड़ता है जो छात्रों के लिए एक मज़ेदार और प्रेरक हो सकता है। ये छात्रों को उनके स्वयं के जीवन और अनुभवों से परे ले जाकर भाषा निर्माण की संभावनाओं को विस्तृत करता है। रोल प्ले समूह की गतिशीलता में भी मदद कर सकता है। शांत छात्र अधिक स्पष्टवादी इस व्यक्ति की भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें अधिक आसानी से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये उन छात्रों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जो ELL सेटिंग में अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ाते समय रोल प्लेइंग गेम्स का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं।
रोल प्ले का प्रयोग छात्रों को बातचीत की स्थिति में बोलने का अभ्यास करना, आत्मविश्वास, प्रभाव का निर्माण करना, प्रगति का आकलन करना और सीखने को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। ये अक्सर विशेष व्याकरण बिंदुओं को लक्षित करने के लिए स्थापित किया जाता है। सरल, भूतकाल, जाने के साथ भविष्य, इन्फिनेटिव्स आदि और बातचीत करना, बाधित करना, सहायता मांगना और छोटी बात करना जैसे सामाजिक संपर्क कौशल का परीक्षण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। भूमिका उतनी ही सरल या जटिल हो सकती है जितने शिक्षक चाहते हैं। मौखिक निर्देश, गुप्त संदेश, हाव भाव और संकेत कार्ड, दृश्य सेट करने के सभी सामान्य तरीके हैं। कक्षा में 4 तरीके की भूमिकाएं हो सकती हैं। ध्यान रखें कि अक्सर ओवरलैप होता है और विशेष परिस्थितियों में इनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोल प्लेज फॉर टीचिंग इंग्लिश। ओके, फर्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट रोल प्ले। द कॉन्फ्लिक्ट रोल प्ले पुट्स पार्टिसिपेंट्स ऑन collision course and ask them to deal with this as best they can. Situation might include attempting to change an airline booking at the peak time or asking a noisy neighbor to turn down the stereo. They test language skills under pressure and are best for students who have some maturity and confidence in their abilities. Okay. यानी कि संघर्ष की भूमिका निभाने वाले। ओके, संघर्ष की जो भूमिका निभाते हैं वो पार्टिसिपेंट्स को टकराव के रास्ते पर ले जाते हैं और उनसे जितना हो सके इससे निपटने के लिए कहा जाता है। स्थितियों में पीक समय पर एयरलाइन बुकिंग को बदलने का प्रयास करना या शोरगुल वाले पड़ोसी से स्टीरियो को बंद करने के लिए कहना शामिल हो सकता है। ये दवा में भाषा कौशल का परीक्षण करते हैं और उन छात्रों के लिए सर्वोत्तम है जिनके पास अपनी क्षमताओं में कुछ परिपक्वता और आत्मविश्वास है। ओके, नेक्स्ट है द कोऑपरेटिव रोल प्ले। द कोऑपरेटिव रोल प्ले टेक्स द अपोजिट tack and requires participants to work together for the common good. Planning a genre party for the teacher, deciding the food list for a barbecue, brainstorming ways to attract tourists to local attractions are all cooperative role play. Often involving safe decision, cooperative role plays are good for gently easing shy students into conversation and for building relationships. ओके, सहकारी भूमिका निभाना। ओके, सहकारी भूमिका निभाने के लिए विपरीत व्यवहार किया जाता है और प्रतिभागियों को आम अच्छे के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए सायोनारा पार्टी की योजना बनाना, बारबेक्यू के लिए भोजन सूची तैयार करना, पर्यटकों की स्थानीय आकर्षणों को आकर्षित करने के तरीकों पर विचार करना सभी सहकारी भूमिका निभाते हैं। अक्सर सुरक्षित स्थितियों को शामिल करते हुए सहकारिता की भूमिका निभाना शर्मीले छात्रों को बातचीत करने में सहजता देना और छात्र समूह के भीतर संबंध बनाने के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैप रोल प्ले। ओके, इंफॉर्मेशन गैप रोल प्ले आर बेस्ड अराउंड फिलिंग इन होल्स इन द पार्टिसिपेंट्स नॉलेज, आंसरिंग क्वेश्चंस from customs officers, asking for timetabling details, making a library card or interrogating a murder suspect are all of information gap type situations. If based on the students' real selves, these role plays are simple to set up, but fictitious situations may require more elaborate preparations. They are an excellent way to practice questions and answers, pattern and prepare students for real life encounters. यानी कि सूचना अंतराल भूमिका। सूचना अंतराल भूमिका नाटक में प्रतिभागियों के ज्ञान में छेद भरने पर आधारित है। सीमा शुल्क अधिकारियों के सवालों का जवाब देना, समय सारणी का विवरण मांगना, पुस्तकालय कार्ड बनवाना या हत्या के संदिग्ध से पूछताछ करना सभी सूचना अंतराल प्रकार की स्थितियां हैं।
यदि छात्रों के वास्तविक स्वरूप के आधार पर इन भूमिकाओं को स्थापित करना सरल है, लेकिन काल्पनिक स्थितियों के लिए अधिक विस्तृत तैयारी की आवश्यकता हो सकती है। ये प्रश्न और उत्तर पैटर्न का अभ्यास करते हैं और छात्रों को वास्तविक जीवन के मुठभेड़ों के लिए तैयार करने का एक शानदार तरीका होता है। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड रोल प्ले। ओके, task-based role play require participants to complete a set activity such as checking into a hotel, giving directions to a taxi driver, ordering a meal, or getting the phone. Number of potential love interest, they are useful for helping students to practice. यानी कार्य आधारित भूमिका निभाना। कार्य आधारित भूमिका निभाने के लिए प्रतिभागियों को एक निर्धारित गतिविधि को पूरा करने की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे होटल में चेकिंग, टैक्सी ड्राइवर को निर्देश देना, भोजन का आदेश देना या संभावित प्रेम रुचि को का फ़ोन नंबर प्राप्त करना हो। वे छात्रों को यथार्थवादी उत्तरजीविता अंग्रेजी कौशल का अभ्यास करने में मदद करने के लिए उपयोगी होते हैं और वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने की उनकी क्षमता में आत्मविश्वास का निर्माण करने में सहायक होते हैं। ओके, ओके